Welcome to Javad's English Academy. Subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more videos. Dear listeners, my today's topic is the pros, the fun they had for the students of class 9th. If you are a student of class 9th, please stop the video and keep open your textbook, page number 28. Dear students, the fun they had is a science fiction by Isaac Asimov. Isaac Asimov is a Russian-born American writer. He is famous for his science fiction and his works in the field of other branches of science. To know more about him, please consult your textbook or check Wikipedia through Google. Now let's learn some new words and terms that you are going to face while reading the text. Here the first term is science fiction. In order to better understand the term, you must understand the term fiction. Fiction is actually literature in the form of prose, especially novels that describe imaginary events and people. Fiction एक ऐसा literature होता है that's not based on reality, but it's based on the imagination of the writer. ये राइटर का तस्वर होता है और इस लिटरेचर का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है. इसमें जो कहानी होती है या जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे राइटर की इमेजिनेशन होती है, उसका तस्वर होता है, उसका ख्याल होता है. Here the term is science fiction. जो साइंस फिक्शन होती है, it's a genre of fiction that deals with science and technology. ये एक ऐसा सन्फ सुखन है, यानी कि एक टाइप हम कह सकते हैं लिटरेचर का that deals with science and technology. ये भी हकीकत पर मबनी नहीं होता है, एक ऐसी कहानी होती है या इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी कहानी का मौजू होता है वो किसके मुतालिक होता है, साइंस और टेक्नोलॉजी के मुतालिक. Next term here is techno-savvy. Techno-savvy means well-informed about the use of modern technology, especially computers. You can call a person as techno-savvy if the person is well-informed about the use of modern technology. Virtual. Virtual means something not physically existing. Next term is mechanical teacher. Mechanical teacher is a computer meant for teaching children at their age level. एक ऐसा कंप्यूटर जो बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया हो, that is called as mechanical teacher. Next term is telebook. You can also call it as e-book. ई-बुक एक ऐसी टर्म है जो हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं टेलीबुक के लिए. A telebook is a book made available in text on a TV screen. अगर आपके कंप्यूटर में कोई टेक्स्ट फाइल है, पीडीएफ फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, जब आप उसको ओपन करते हो और जब स्क्रीन पर वो टेक्स्ट आता है, that can be called as telebook or e-book. For more words, please check glossary at page number 32 of your textbook or use your phone's dictionary. Dear students, do you know what is the importance of science fiction? यानी कि साइंस फिक्शन जो होती है इसका क्या मकसद होता है, क्यों राइटर्स साइंस फिक्शन का इंतखाब करते हैं अपनी राइटिंग्स के लिए. इसके कुछ मकासद हैं, चल उन पे बात करते हैं. पहला पॉइंट जो है, साइंस फिक्शन राइटर्स हाईलाइट द इफेक्ट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन और सोसाइटी. हमारे समाज पर साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या असर है उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं राइटर्स. जो भी साइंटिफिक डिस्कवरी या इन्वेंशन होती है उसका हमारे समाज पर अच्छा असर ही रहता है, लेकिन कभी कभी इसका हमारे समाज पर या इंसानी जिंदगियों पर बुरा असर भी होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज
they intend to divert the minds of scientists towards new discoveries and invention. जो साइंस फिक्शन राइटर्स होते हैं वो हमारे साइंटिस्ट्स का ध्यान जो है नई इन्वेंशंस और नई डिस्कवरीज की तरफ मबजूल कराते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रोबोट मूवी वाज मेड, रोबोट्स वर नॉट मेड एट दैट टाइम. रोबोट्स इन्वेंट नहीं किए गए थे जब रोबोट मूवी बनाई गई. तो इसका मतलब है कि जो राइटर्स होते हैं वो साइंटिस्ट्स को नई इन्वेंशंस और नई डिस्कवरीज की तरफ उनका ध्यान बढ़ाने की कोशिश करते हैं. Dear students, the lesson, the fun they had is set in future. इस कहानी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको फ्यूचर में जाना होगा. बिकॉज दिस lesson is, this story is, this prose is set in future. The writers imagines the condition of education system in 2157. यानी अगर आपको इस स्टोरी को अंडरस्टैंड करना है, then you have to forget that you are 2020. You are in 2020. अगर आपको इस कहानी को ठीक तरह से अंडरस्टैंड करना है तो आपको तस्वर करना है, इमेजिन करना है कि ये 2020 नहीं है बल्कि ये 2157 और फिर आज के दौर की बात करनी है. इसमें राइटर हाईलाइट करता है कि 2157 में जो हमारा तालीमी निजाम है वो कैसा हो, कैसे स्कूल्स होंगे, कैसी बुक्स होंगी, कैसे टीचर्स होंगे, और जो ये निजाम आजकल चल रहा है क्या ये ऐसे ही रहेगा या इसमें कोई चेंज आएंगी. In 2157 there shall be no schools, no human teachers and no textbooks, and the education shall be imparted through virtual classrooms. तो जो राइटर है उसका ख्याल है कि जब 2157 होगा तब आज की तरह न तो स्कूल्स होंगे, न तो क्लासरूम्स होंगे, और न ह्यूमन टीचर्स होंगे और न टेक्स्ट बुक्स होंगी, बल्कि जो तालीम है, जो एजुकेशन है वो बच्चों को ऐसे क्लासरूम से, ऐसे स्कूल से या ऐसे क्लासरूम से हासिल होगी जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी. एंड यू सी इट्स 2020 and the education is imparted through online classes due to COVID-19. आजकल आप देख रहे हो कि COVID-19 का कहर चल रहा है और बच्चों को तालीम जो मिल रही है आजकल वो ऑनलाइन क्लासेस से मिल रही है, सोशल मीडिया से मिल रही है, रेडियो से मिल रही है, टेलीविजन से मिल रही है. अभी हम 2157 में नहीं ही, लेकिन उसे अभी वहां तक जाने के लिए तकरीबन 137 ईयर्स. लेकिन आज ही हम देख रहे हैं कि 2020 में ही हम देख रहे हैं कि जो ये क्लासरूम्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, ह्यूमन टीचर्स ऐसे अवेलेबल नहीं है, बल्कि बच्चों को तालीम ऑनलाइन दी जा रही है. लॉकडाउन की वजह से बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं यही काम चला, यहाँ इसी पे काम चलाना पड़ता है. इज़ैक असीमो 2157 की बात करते हैं कि हमारा तालीमी निजाम आज के बाद यानी 2157 में कैसा होगा. सो लेट्स बिगिन. In this lesson, Tommy and Margie are the two important characters. One day, Tommy finds an old book, textbook, in the attic of his house. Attic means a space or room on the roof of a building. There was a lot strange in the book. It was
totally different from a telebook. Tommy and Margie and other kids were aware about telebooks and mechanical teachers. They had only heard about old schools, teachers and books. Margie had learned from her grandfather that in past all stories were printed on paper. The book fascinated them. When they turned the pages, the words didn't move like the words on computer screen. इस लेसन में टॉमी एंड मॉर्जी दो अहम कैरेक्टर्स हैं, ये दो बच्चे हैं। और एक बार क्या होता है कि टॉमी कहीं से एक बुक हासिल करता है, उसको अपने मकान के छत के नीचे जो जगह होती है एटिक, तो वहां पे ये बुक मिलती है। जब उन्होंने इस बुक को ठीक तरह से देखा तो उन्हें बहुत अजीब अजीब सा लगा इस बुक में, क्योंकि ये बुक जो थी ये टेली बुक से बिल्कुल डिफरेंट थी। वो इस बुक के बारे में कुछ नहीं जानते थे। हाँ, उन्होंने अपने ग्रैंडफादर से या जो उनके बुजुर्ग लोग थे उनसे सुना था कि किसी जमाने में सारी कहानियां जो थी वो पेपर पर प्रिंट होती थी। तो इट्स एनफ फॉर टुडे। वी विल टॉक अबाउट more events that happen in this story in our next video. So